Welcome you all in the class of Srimad Bhagavatam by the mercy of Srila Prabhupada and Vaishnava Janam. We are in a position to continue our Nityam Bhagavata Sevaya. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Shrivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Shrivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tera Vanachari Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Shrivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya
प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि नाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रबंध महाराज की जय। निताय गौर भीमानंदे हरि हरि वो। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी कौन सा श्लोक है आज जो लेने का है? 31 प्रभु 1.16.31। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। 1.16.31 आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान्। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान्। आत्मनां चानुशोचास्मि शोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान्। What meaning? आत्मनम स्वयं च भी अनुशोचामि शोक कर रही हूँ भवंतम आप च भी अमर उत्तमम देवताओं में श्रेष्ठ देवान देवताओं के लिए पितरन पितृलोक के निवासियों के लिए ऋषेन ऋषियों के लिए साधून भक्तों के लिए सर्वान सभी वर्णान जातियों के लिए तथा और आश्रमान मानव समाज के चारों आश्रमों के लिए। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ ही साथ सभी देवताओं ऋषियों पितृलोक के निवासियों भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। तो तात्पर्य अगर आप लोग मदद करें पढ़ने में। মহান সমাজের উন্নতা সম্পাদন করার জন্য মানুষ দেবতা ঋষি পিতৃলোকের অধিবাসী ভগবত ভক্তদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা এবং বর্ণ ও আশ্রম ব্যবস্থার বিজ্ঞানসম্মত আচরণের ব্যবস্থা রয়েছে। দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ঋষিদের অভিজ্ঞতা দ্বারা পরিচালিত বিজ্ঞানসম্মত বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার মাধ্যমে পশু জীবন এবং মানুষের জীবনের পার্থক্য সূচিত হয় এবং তা ক্রমে ক্রমে মানুষকে পরম নিত্য সত্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করে। আর কেউ পড়বেন পরের প্যারাগ্রাফ? ওকে প্রভু মিউট করে মাতাজি পড়ছেন। ভগবত প্রবর্তিত বর্ণাশ্রম ধর্ম যার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পাশবিক চেতনাকে দিব্য চেতনায় উন্নীত করা, তা যখন অজ্ঞানতার ব্যাপকতার ফলে ভেঙে পড়ে তখন জীবনের শান্তি এবং সমৃদ্ধির সামগ্রিক সুব্যবস্থাটি অচিরে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। জীবন প্রভু
কত নম্বর শ্লোক মাতাজি? 31 নম্বর শ্লোক। The age of Kali, হ্যাঁ হ্যাঁ purported by Srila Prabhupada. Yes, Srila Prabhupada. In the age of Kali, the first attack of the venomous snake strike against the God-made Varnashram Dharma, and thus a person properly qualified as Brahmana is called a Shudra. And a Shudra by qualification is passing as Brahmana. All on a false birthright claim. To become a Brahmana by a birthright claim is not at all bona fide, although it may be a fulfillment of one of the conditions. But the real qualification of a Brahmana is to control the mind and the senses, and to cultivate tolerance, simplicity, cleanliness, knowledge, truthfulness, devotion, and faith in the Vedic wisdom. Prabhuji can read. Yeah, only one কিন্তু person. কিন্তু ব্রাহ্মণের পড়বেন। মাতাজি আমি পড়তেছি। কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রকৃত গুণ হচ্ছে মন ও এবং ইন্দ্রিয়াদি সংযত করা এবং সহনশীলতা, সরলতা, সুচিতা, জ্ঞান, সততা, বৈদিক জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের অনুশীলন। বর্তমান যুগে আবশ্যকীয় গুণগত যোগ্যতাগুলি বিবেচনা করা হচ্ছে না এবং মিথ্যা জন্মগত অধিকারের দাবি রামচরিতা মানুষের রচিতা এক দক্ষ কবির দ্বারা সমর্থিত হচ্ছে। কলির প্রভাবে এইসব হচ্ছে, তাই গাভীরূপী ধরনী দেবী শোচনীয় অবস্থার জন্য শোক করেছিলেন। অক্ষয় প্রভু, আজকে প্রভু যেটা বলছেন আপনি একটু লিখে পরে সামারাইজ করবেন। ঠিক আছে মাতাজি। ওকে মাতাজি। মানে কি বাংলায় করতে হবে? হ্যাঁ প্রভু তো হিন্দিতে বললেন, পরে আপনি বাংলায় করবেন। আচ্ছা ঠিক আছে। পরে যে কল্যাণী মাতাজি আর শ্রীবন্ধা মাতাজি। ঠিক আছে। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्णुमस्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुशतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरं सागरं रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सागरं ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमस्ते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानश्वरी देवी प्रणमामि हरिप्रियै वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमती जयपताका स्वामिनिति नामिने नमाचार्य पादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरदामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। आत्मनं चानुशोचामि भवन्त चामरोत्तमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधूनां सर्वान् वर्णास्तथाश्रम। तो हम सुन रहे हैं, तो हम सुखदेव गोस्वामी से हैं, लेकिन यहाँ इस वक्त हम धरती माता धरणी से सुन रहे हैं। और देखिए कंपैशन क्या होता है। वो कह रही हैं कि मैं अपने बारे में, आपके बारे में, सभी देवी देवताओं के बारे में, ऋषियों के बारे में, पितृलोक के निवासियों के बारे में, भगवत भक्तों के बारे में, वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूं। दिस इज कॉल्ड कंपैशन। और अगर हम अपनी बात ले लें तो हमारा जो पड़ोस में रहता है, चाहे वो 10 साल से रह रहा हो, उससे हमारी क्या बोलते राम नामी नहीं है, हेलो हाय नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्या लेना देना। लेकिन देखिए कंपैशन क्या होता है, ऑन द ऑन लिविंग बीइंग्स, दैट्स कॉल्ड ए कंपैशन। अपने बच्चों पे तो सब कंपैशन करते हैं, माता पिता पे करते हैं, दोस्तों पे करते हैं, लेकिन कंपैशन है जो सर्वभूतानाम है। हमने अपने गुरु महाराज को देखा कि जब हम मॉर्निंग वॉक में जाते थे तो जो भी आदमी सामने से आता, गुरु महाराज कहते गुड मॉर्निंग सर, खाली गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग सर।
और जब आदमी पास हो जाते तो मुड़ के देखते थे कि यार किसने गुड मॉर्निंग बोला, क्यों बोला होगा। और इस प्रकार महाराज 1 घंटे की जो हम हुआ करते थे, जो भी मिला गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। लेकिन हम अगर कोई सामने आया तो मुंडी इधर कर देते हैं। वी हैव नो कंपैशन, वी हैव नो फीलिंग। सामने से जो है भगवान का रूप चला आ रहा है, वी डोंट नो। यहां देखिए पृथ्वी को अपने विषय में, अपने विषय में क्या कि मैं भगवान से अब जो हूं मेरा वियोग हो चुका है। जिस प्रकार मैं वियोग सहन कर रही हूं, शायद आप भी, ये धर्मराज तुम भी, और सभी देवी देवता भी, क्योंकि भगवान सबके रक्षक हैं। जब भगवान नहीं होंगे तो रक्षा कौन करेगा, पालन पोषण कौन करेगा। तो ये है फीलिंग ऑफ ए ग्रेट डिवोटी। पृथ्वी एज ए डिवोटी बन के आई है और वो बता रही है कि मैं तो सबके बारे में सोच रही हूं कि बिना भगवान के कैसे रह रहे होंगे। देखिए, जब मछली जिंदा होती है तो वो उल्टे पानी में भी बह सकती है। जब जिंदा है उल्टे पानी में भी बह सकती है। और जो मच्छी मरी होती है वो बहाव में बहती है। तो इस वक्त ये कली का बहाव चल रहा है। हम सब कली के बहाव में ऐसे बह रहे हैं जैसे मृत हों। हम अपोजिट डायरेक्शन नहीं जा सकते। अपोजिट डायरेक्शन यानी भगवत भक्ति। हम भगवत भक्ति कर सकते हैं। जो इसका कली का जो अभाव है, जो बहाव है, उसको हम तैर सकते हैं, लेकिन हम तैरना नहीं चाहते। क्यों? मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा, क्योंकि हमारे भी कृष्णमति डेवलप नहीं हुई है। और हम समझते हैं कि हम अपने मंदिर में पूजा करें, ध्यान करें, सब कुछ करें, सब हो गया। नहीं, जो ध्यान हमने अपने मंदिर में लगाया वही ध्यान जब हम मंदिर में ना हो तब लगे तो हम भक्त कहलाने के योग्य हैं। ये बहाव है। एक बार गुरु महाराज ने मुझे कहा, हाउ इज योर डिवोशन गोइंग ऑन? I said, Maharaj, very nice. So, how many friends you have made? I said, Maharaj, I couldn't make any friends. Those who come in the temple. The Guru Maharaj said, देखिए, अगर भगवान से प्यार करना है तो भगवान की हर चीज से प्यार करना होगा। हर एक चीज से प्यार करना होगा, चाहे तुम्हें अच्छी लगे चाहे ना लगे। वो भगवान का प्रारूप है, भगवान का ही रूप है। तुम हर के आदि में जित सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपे मन संधारे धिया। ये मैं श्लोक काफी बार बोलता हूँ। तो भगवान को ऐसा देखें कि सब में भगवान दिखे और भगवान सब में दिखे। देखो, पृथ्वी है, खुद परेशान है, लेकिन औरों की परेशानी के बारे में सोच रही है। वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराई जाने रे। और कभी भी क्या होता है, हमें लगता है मेरा दुख सबसे ज्यादा दुख है। दुनिया में इतना गम है, दुनिया में इतना गम है कि मेरा गम कितना कम है। अगर आप बाहर की दुनिया में देखें, बहुत परेशानियां, हजारों किस्म की परेशानियां, अधि भौतिक हो, अधि दैविक हो, अधि आत्मिक हो, परेशानियां परेशानी हैं। और हम सोचते मेरी परेशानी सबसे ज्यादा। हर व्यक्ति परेशान है। आपने देखा होगा, जब कभी कोई सड़क में गिर जाता है सब लोग हंसने लगते हैं, सब हंसने लगते हैं। क्यों? कि हम सोचते हैं अरे मैं ही गिरा नहीं, दुनिया गिरती रहती है, भाई क्या फर्क पड़ने वाला है। हम हंसते हैं सब लोग। जब बच्चे गिरते हैं तो सब हंसते हैं, सिर्फ माँ को दुख होता है।
कि कहीं मेरे बेटे को चोट तो नहीं आई, बाकी सब हंस दे, गिर गया गिर गया गिर गया। तो आत्मीयता बढ़ानी है। आजकल बहुत कुछ हो गया है। आजकल लोग कहते हैं कि भाई हाँ, हमने गुरु को बना दिया। कैसे बना दिया? कि हमने गुरु से दीक्षा ले ली। तो ऐसा लगता था पहले गुरु गुरु नहीं थे, अब तुमने उनको गुरु बना दिया। कोई नहीं कहता मैं गुरु के शरणागत गया, श्री गुरु के शरणों में मैंने अपने निवेदन किया। नहीं, मैंने गुरु बना दिया। यहां भी मैं की महत्ता, मैं हूं जो हूं, मेरा अलावा की क्या है। और जैसे मैंने पहले आपसे कुछ क्लास पहले कहा होगा कि हाँ, हम गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते। गुरु को मानते हैं, हमारे कमरों में, हमारे टेंपल में जो है गुरुओं की फोटो लगी होगी, इन पे माला भी चढ़ी होगी। गुरु को माना लेकिन गुरु की नहीं मानते हैं। गुरु क्या कहते हैं? शांत मन से चैंटिंग कर लो, मजाल है हमारा मन शांत हो जाए। भागवतम का अध्ययन करो, हम अध्ययन करते हैं, मजाल हमें समझ में आ जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें हम गुरु की नहीं मानते हैं और हम क्लेम करते हैं कि जब मरणों प्राण जो है मैं सीधा गोकुल धाम जाऊंगा। तो कैसी विडंबना है ये, हर व्यक्ति के साथ में कैसी विडंबना है। जाना है गोलोक धाम और करना है वही जो हम कर रहे हैं, कभी कभी गुरु का नाम लेकर। लेकिन देखिए, धरती ऋषियों के बारे में सोच रही है। ये ऋषि लोग अपनी ध्यान कैसे कर रहे होंगे, अपना यज्ञ कैसे कर रहे होंगे। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जो भोक्ता है यज्ञ का वो तो सामने है ही नहीं। कैसी दिनचर्या इनकी चल रही होगी, देवी देवता अपना काम कैसे कर रहे होंगे, क्या उनको भगवान की आराधना होगी। सब उसके दिल में उथल पुथल हो रही है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, हम बगल में नहीं जानते बगल में कौन है, चाहे जब 20-20 साल हो जाए, 30-30 साल हो जाए। और जो हम गांव वाले लोग हैं, हम अपने बारे में, अपने पूरे खानदान के बारे में, दादा परदादा झड़दादा नड़दादा सबके बारे में जानते थे। और जब दोस्तों से झगड़ा हो जाता है तब उनके दादा परदादा के बारे में हम जानते थे, क्योंकि उनको गाली देते थे। अपने जाते थे, लेकिन झगड़ा हो गया ना तो फिर उनके दादा परदादे के घर में इतना मालूम होता था। और आजकल ये मालूम नहीं है बगल में कौन है। बगल में कोई टेररिस्ट हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें से क्या लेना देना। यह है आजकल संकीर्ण विचारधारा। और जब हम संकीर्ण विचारधारा के हैं तो हमारा ज्ञान भी संकीर्ण हो जाता है। हम भी हर चीज को खुले मन से नहीं देखते हैं, खुले दिमाग से नहीं देखते हैं। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। वस्तुतः हम नहीं जानते कि सही है गलत है, वही देखना जो हम देखना चाहते हैं। अगर किसी ने कह दिया ये प्रभु खराब है, तो आप जब भी मिलोगे हम आपको मालूम प्रभु खराब है। मालूम है हमें, पहले प्रभु जी मुझे पहले बता दिया गया था आपके बारे में। अपनी सोच कुछ नहीं, अपने विचार कुछ नहीं, अपना उसके साथ रफ्ता कुछ नहीं। बस किसी ने बोल दिया हम समझ गए और हमारे विचार संकीर्ण होते चले जाते हैं। और जज गुस्सा आएगा, अरे प्रभु हम इतने साल से हैं, तुम हमें समझा रहे हो कि कैसे करना। मुझे मालूम है, क्योंकि हम अपनी कुनंदा सुन ही नहीं सकते हैं। समझने की बात तो दूर रही। लेकिन आप उदाहरण दिए, यहां देखिए कैसे सबके बारे में सोच रही है। वर्णाश्रम धर्म कैसे चल रहा होगा। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो इनको कैसे ज्ञान देंगे, क्योंकि वो खुद ही विरह में चल रहे होंगे। याग यज्ञ कैसे चल रहे होंगे, तो खुद विरह की ज्वाला में चल रहे होंगे। धर्म अपना कार्य कैसे करेगा, खुद ही बेचारा परेशान है। धर्म एक पैर में खड़ा है, कैसे काम कर रहा होगा। तो हम डिवोटियों को भी श्रीमद् भागवतम के हर श्लोक से कुछ न कुछ लेना है। बहुत सारे लोग कहते हैं
कि देखिए अगर आप नॉन डिवोटी के साथ मिलेंगे ना तो आपका डिवोशन खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी धारणा है। अब अपने बारे में सोचिए, क्या हम बचपन से डिवोटी थे कि हम डिवोटी पैदा हुए? हम क्या, हमारे ऊपर में तो किसी ने कृपा दृष्टि रही होगी तभी तो हम भक्ति में आए। लेकिन अब हम भक्ति में आ गए, बोला अरे ये तो कार्मी है, अरे ये सब कुछ नहीं आता, ये बेकार है, ये बेकार है। हम जैसे हमने बड़ा अच्छी कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, हम अपने आप को कुछ समझ बैठे हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। अब हमारे उपाधि क्या लगी? प्रभु जी हाउ आर यू। अब हम तो प्रभु बन गए, अब हम प्रभु बन गए, हमारी उपाधि लग गई। अब अपने से जो जहां से हम आए हैं हम उस तबके को हम देखना नहीं चाहते, उनसे बात नहीं करना चाहते। क्या बात करेंगे, इनको कुछ समझ नहीं आती, जैसे हमें पहले दिन से समझ आ गई थी। तो ये विशेष दुर्भाग्य हम लोगों का, हमें समझ नहीं पाते हैं। हम समझते हम बस हम अलग हो गए। और हो सकता है हम अपने कर्म के द्वारा नहीं, मन और वचन के द्वारा, अच्छा वचन भी छोड़िए, मन के द्वारा हम उनसे घृणित हों। कौन देखेगा मेरे मन में क्या चल रहा है? कौन देख पाएगा? मैंने तो तिलक लगाया, अच्छे कपड़े पहने, मैं भागवतम बोलूं, मन में क्या चल रहा है, मन में कौन से मेले चल रहे हैं, किसको क्या मालूम। तो दूसरों को कहना इज कार्मी प्रभु, व्हाट टू डू, इज कार्मी प्रभु, he doesn't even chant। अरे भक्तों के बीच में खड़ा है तो ये इतना कोई अच्छा नहीं है क्या? जो आदमी भक्तों के बीच में खड़ा हो, भक्तों का संग कर रहा हो, और हम बोले अरे अरे ये doesn't chant है, ये ओके, नो प्रॉब्लम। नो, वन डे ही विल। अज्ञान सुकृतियां हैं, ही विल ऑल्सो डू इट। मुझे मालूम है जब अपने जीवन में पहली बार मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का बीट पे चांटिंग किया तो वेडनेसडे का दिन था, 1984 की बात बता रहा हूं। और तब बहरीन में हफ्ते में एक बार हिंदी पिक्चर आती थी, एक बार, वो भी वेडनेसडे के दिन। और उस दिन प्रभु आ जाते थे कि चांटिंग करो। मैं बोले यार क्या यार, पिक्चर तो देखने दो। लेकिन लगन लगे हरि नाम की। ऐसे कैसे शुरू किया? कभी कुछ गुस्से में शुरू किया, कभी कोई घृणा से शुरू किया, कभी अपने मान रखने के लिए शुरू किया, चलो उसने बोला कर लेते हैं। लेकिन संग के द्वारा है, संग से सदगुण उपजे, असंग से गुण जाए। तो हम अपने आप को यह ना समझें कि अब हमारे पास तो तिलक है, मेरे पास अब आचमनी भी है, मैं तो सुबह उठता हूं, अब मुझे दूसरों की जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? To affect the perfection of human life, there is a cooperation between the men and demigod, sages, denizens of Pitraloka, devotees of the Lord, and the scientific system of Varna and Asrama, order of life. सबका साथ चाहिए, अकेले से कुछ नहीं होता, सबका साथ चाहिए। भक्ति के लिए सबका साथ चाहिए, गुरुओं की कृपा चाहिए, वैष्णवों को संग चाहिए। श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितमृत के अध्ययन चाहिए, कीर्तन भी चाहिए, मनन चिंतन भी चाहिए। इतना आसान तो नहीं होगा ना। हम बिस्तर से उठें, 2 4 5 माला जपा की, बोला बड़ो आज मजा आ गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर ऐसा होता तो भगवान क्यों कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मृति च? नहीं कहते ना, कहने की जरूरत है। लेकिन उनको मालूम है ये लोग जो हैं धीरे धीरे सब कुछ हो, सनई सनई ऊपर में धीरे धीरे सब कुछ होता है। बीच में जो है लिंक छोड़ना नहीं है और सबका आदर करना है। देखो धरती सबका आदर कर रही है और थोड़ी परेशान भी है कि हमारे भगवान हमारे पास नहीं है, अब क्या होगा। करीब करीब अजीब चीजें हो जाती हैं। एक बार गुरु महाराज कतर आए, कतर के बाद वो बहरीन आए, तो 2 रात गुरु महाराज रहते, ओनली 2 नाइट्स। तो 3rd डे जब गुरु महाराज वहां से चलने लगे तो हम 4-5 आदमी जो हैं हमारे साथ थे,
शायद विजय काला प्रभु थे, मैं था, और गोपीनाथ दास प्रभु थे, सदगुरु प्रभु थे। हम महाराज को छोड़ने एयरपोर्ट पे गए। जब हम एयरपोर्ट जाने वाले थे, महाराज ने जैकेट पहन रखी थी। महाराज ने अपने हाथ में, अपने जेब में हाथ डाला और हाथ में महाराज ने 2 लिफाफे दिए जो दक्षिण के लिफाफे थे, और मेरे हाथ में दे दिए। मैंने कहा गुरु महाराज, बोला यू नो व्हाट टू डू। मैं बोले यार विजय काला प्रभु जी हैं, सदगुरु प्रभु जी हैं, गोपीनाथ प्रभु जी, मेरे हाथ में पकड़ा दिया सारे पैसे। मैंने कहा गुरु महाराज मैं क्या करूं? बोला यू नो व्हाट टू डू। अब हम बड़े परेशान किया, क्या करें क्या करें। लेकिन तब क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था तो मुझे महाराज का जो था अमेरिकन एक्सप्रेस जो उनका क्रेडिट कार्ड था उसका नंबर मुझे मालूम था। मैं समझ गया कि हाँ महाराज ने बोला कि उसमें जमा कर। तो हम दूसरे दिन गए और महाराज के अकाउंट में जमा कर दिए। तब वहाँ पैमो चलता था, पैमो होता था, एक ईमेल होती थी हमारी pamo.net और .org। उसमें हम 10 रियाल साल के देते थे तो हमारे वहाँ कम्युनिकेशन हो जाती थी। तो मैंने गुरु महाराज को लिखा, वो तब तो फोटोकॉपी वगैरह नहीं होती थी। मैंने लिखा गुरु महाराज इतने डॉलर मैंने आपके अकाउंट में डाल दिए हैं। 4-5 दिन के बाद गुरु महाराज के मैसेज आता है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विस। पैसा उनका, सब कुछ उनका, मुझे बोले थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विस। तो जब तक इतनी करुणा नहीं होगी हम भक्त कैसे बनेंगे? हमें तो किसी भक्त को थैंक यू बोलने का भी वो नहीं मिलता है कि थैंक यू वेरी मच, इतना भी हमारे पास टाइम नहीं है कि उसको किसी को थैंक यू बोले। छोटे बच्चों को अगर हमारे पास आ भी जाए हम थैंक यू भी नहीं बोलते। क्यों? हम तो प्रभु हैं ना, हम तो प्रभु जी हैं। अब तुम व्यास आश्रम में बैठते हैं भाई, अब तुम जरा अलग हो गए। लेकिन जब तक इतनी ह्यूमिलिटी नहीं आएगी, जैसे प्रभु जी कल कह रहे थे, तृणादपि सुनीचन जब तक नहीं होगा तब तक हम भक्ति क्या, भगवान कृष्ण के नाम का आभास होगा, भगवान से प्रेम नहीं हो सकता है। यह है प्रेम की पराकाष्ठा जो धरणी अपने दिल के विचार बता रही है कि ये सारे लोग कैसे जी रहे होंगे। क्यों? कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो निर्ष दृष्टामेश पुराणार्को दिनोदित। इस कली में, कली का जो सूर्य है, जो आसमान के सूर्य का तेज है, वो बाह्य दृष्टि से जो है रोशन कर सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम हमारे दिल के अंधकार को जो है प्रज्वलित कर देती है। पुराणार्को उदिनोदित है। ये पुराण भी एक सूर्य है जिसने, देखिए सूर्य तो वो चमकता है, भगवान सूर्य ने कितने लोगों को डिवोटी बनाया, और इस भागवत ने हजारों लोगों को डिवोटी बना दिया। मैं हम कंपेरिजन, नहीं क्या हम डिमीनिंग है, कंपेरिजन से पुराण अर्को दिन। तो जिसने पुराण पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे करके, सने ऊपर में धीरे धीरे करके उसको ज्ञान हुआ। तेषामेव अनुकंपार्थम अहम ज्ञान जम तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपे न भास्वता। भगवान कहते मैं ज्ञान का दीपक जलाऊंगा, तुम सिर्फ कोशिश करो। निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। हे अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बनो, बाकी सब हमने करके रखा हुआ, सब हमारा कराया है, तुम सिर्फ निमित्त मात्र बनो। तो इस प्रकार आइए आज के श्लोक में देखें, जिनसे हम मिलें, कोई भी मिले, उनको नमन कीजिए, उनसे हंस से बात कीजिए, चाहे आपका ऑफिस हो या घर हो या पड़ोसी हो, है वो आपके अंदर कंपैशन आना चाहिए। अगर आपको भगवान से प्रेम करना, वो सब भी भगवान के अंश हैं, और उनको प्रणाम करने में हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि भगवान देखेंगे कि यार ये आदमी सुधर रहा है, बहुत सुधर गया, और अब सुधर गया तो इसको और मौका दें सुधरने का, रिफाइनमेंट होने का, और तब जाके हमें ये धारणा मिल सकती है, धरती जैसी धारणा। धरती में कितना धैर्य है, सब चीज सहन करती है। धरती जैसा धैर्य और सूरज जैसा तेज हो तो भक्ति होगी। है तो क्या कहते भगवान जी, तामस तितिक्षस्व भारत, टॉलरेट। हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाते, हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाते। कुछ भी चीज जो हमारी इच्छा की ना हो
जो हमारे मन को संतुष्टि ना दे, जो हमारे बाह्य इंद्रियों को ग्रेटिफाई ना करे, हमको संतुष्ट नहीं होता है। और इस प्रकार जो संतुष्ट नहीं होता है, हम असंतुष्ट रह जाते हैं, और असंतुष्ट रहने पर जो है हमें शांति प्राप्त नहीं होती है। और शांति प्राप्त करने के लिए भगवान के नाम का स्मरण, जीवों पर दया और वैष्णव सेवन कीजिए, आनंद में रहिए। तो आइए इसके साथ भी अपनी क्लास को विश्राम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए कि मैं जो कुछ मुझे याद आए मैं कुछ कह सकूँ, आपको बता सकूँ। हरे कृष्णा।